Bismillahirrahmanirrahim. Alright, in this question you have to find out the value of the unknown in each of the following figures. So if you look at part A, it is a four-sided figure, right? It is a four-sided figure and we have to find out the value of A. So how to find out? The first thing we are going to do is we are going to see what is the sum of all the angles in this shape. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस शेप के सारे एंगल्स का सम कितना है, ठीक है? So it is a four-sided figure. The value of n, the number of sides, are 4. And how do we find the sum of all the angles? 4 minus 2 multiplied by 180. 4 is the number of sides, minus 2 multiplied by 180. So 2 times 180, this is going to be 360. Now we get to know that the sum of all the angles in this shape is how much? It is 360. So we are going to add all the angles. Angle A, angle 110, angle 62, angle 78, angle so these four angles, the sum of these four angles is 360, as we got to know from here, right? Now we are going to solve this equation to get the value of x. So when we add all the numbers, 110 plus 62, it is going to be 172. 172 and 8 is 180. 180 and 70 is 250. So this is 250. If you add all three of them, ये 350 हो जाएगा, 250 हो जाएगा. 250 को आप opposite side पे shift करेंगे, it will become minus. So 360 minus 250, this is going to be how much? 110. So the value of A is 110. Now in part B again we are going to follow the same step. Part B में भी हम यही काम करेंगे, ठीक है? जिस तरह से यहाँ पर हमने सारे इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट किया था, पार्ट बी में भी सारे इंटीरियर एंगल्स का हम सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? सो इन पार्ट बी the value of n is again 4, राइट? पार्ट बी के अंदर भी फोर साइडेड फिगर है, तो सारे एंगल्स का सम दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता चल चुका है कि अगर फोर साइडेड फिगर हो तो उसके सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा. तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे. 84 प्लस 2b प्लस 78 प्लस b. These are the four angles, ठीक है? b, 78, 2b and 84. जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा, ठीक है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें. 80 plus 70 is 150 and this is going to be 162. तो 162 plus 2b plus b, ये 3b हो जाएगा. So 3b will be equals to 360 minus 162. 162 opposite side पे शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, ठीक है? So 360 minus 160 is 200. 200 minus 2 is 198. So this will be 198. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. So the value of B is 66. Okay, now we are doing part C. In part C, the number of sides are 5.
सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम. पहले हम ये देखेंगे कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना है. उसके लिए अगेन हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, राइट. n is 5, so 5 minus 2 multiply by 180 करेंगे, it will become 3. 3 times 180, so 3 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 4 5, this is 540. So 540 is the sum of all the angles. 540 is the sum of all the angles in a five sided figure. ये हमको पता चल गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे वन बाय वन. 1 2 3 4 5. So the first angle is 101, the second angle is 2c, third angle is 38, fourth angle is 152 and the fifth angle is c. सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, 540 के इक्वल होगा, क्योंकि सारे एंगल्स का सम हमने क्या निकाला है, 540 निकाला है. ठीक है, किसी भी शेप के सारे एंगल्स का सम कैसे निकलता है, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180. नाउ ऐड ऑल ऑफ देम. ठीक है, 101 101 plus 30 will be 131, 139, 139 plus 52, 189, 191, 291 हो जाएगा ये. ठीक है, सो 2c plus 291 plus c will be equals to 540. So 2c plus c will be 3c. 291 ऑपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा. ठीक है, सो 540 में से जब आप 291 को माइनस करेंगे, this is going to be 3. 13 minus 9 is 4. This is 249. 249 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 3s are 9. So the value of C is 83. Okay, in part D again now we have to find out the value of D here. We have to find out the value of D. ठीक है, अब इस शेप की कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं. ठीक है, 6 में से आप 2 माइनस कर दें. 6 माइनस 2 कितना होता है, 4. तो आप 4 टाइम्स 180 कर दें. 4 टाइम्स 180, राइट. 4 टाइम्स 180 विल बी 720. ठीक है, आपको पता चल गया कि सारे एंगल्स का सम कितना है, 720 है. सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी शेप के सारे एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए उसकी नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे, कितनी साइड्स हैं, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उसमें -2 कर दें. ठीक है, अब इस शेप की 6 साइड्स हैं ना, आप -2 कर दें, 4 आ जाएगा आपके पास. 4 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -2 करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि उस शेप के सारे एंगल्स का सम कितना है. ठीक है, अब देखें, अब आप 108 प्लस 4d प्लस 4d प्लस 5d प्लस 102 प्लस 4d, तो ये टोटल कितने एंगल्स हुए, देखें 1 2 3 4 5 6. जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे. अगर 6 साइड्स हैं तो 6 एंगल्स, 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स. ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम इन सब को प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमने यहाँ फाइंड किया है, 720. ठीक है, तो अब आप इन सब को प्लस कर दें. दिस इज़ गोइंग टू बी, सारे डी वालों को पहले प्लस कर दें. 4d प्लस 4d 8d हो जाएगा. 8d प्लस 5d 13d हो गया. 13d प्लस 4d 17d हो गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 102 110 210. ये हो गया 210 प्लस 7d 17d इज इक्वल्स टू 720. नाउ 17d, थोड़ा सा मेरा पेन इशू कर रहा है तो इसीलिए ये राइटिंग ठीक से नहीं हो रही, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा. 720 माइनस 210 आप करेंगे. ठीक है, 720 में से आप
210 को माइनस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 510। 510 को डिवाइड करेंगे 17 से। 17 थ्री ज़ा 51 होता है, ठीक है। 17 वन ज़ा 17, 17 थ्री ज़ा 51 हो गया, और 17 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। सो डी की वैल्यू आपके पास 30 आ गई।